हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर यू एबल टू हियर मी? आवाज सबको सुनाई दे रहा है बराबर से? ओके, सो आई थिंक विल स्टार्ट विथ the last chapter of our syllabus, that is differential equations, mathematics 1, differential equations. Okay, yes, so we are giving a start to this chapter called as differential equations. Let us go to some basics of a differential equation. Okay, now a differential equation ये होता क्या है? Let us first understand the meaning of the differential equation. Okay, differential equation is an equation. Differential equation is an equation which has differentials. Differential equation is an equation which has differentials. Now, what are differentials? dy by dx, d square y by dx square, d cube y by dx cube. Okay, this is the first order derivative, second order derivative, third order derivative. Okay, तो these are differentials. तो जो इक्वेशन में ये डिफरेंशियल्स रहता है, जो इक्वेशन में ये डिफरेंशियल रहता है, ओके, सो those equations are called as differential equations. Is it very difficult to understand what is a differential equation? Yes or no? Okay, so let us understand the first concept. पहला concept हम लोग समझ लेते हैं exercise 8.1 का. exercise 8.1 का first concept हम लोग समझ लेते हैं, that is degree and power. Okay, sorry, order and degree of the differential equations. Let us go to exercise number 1. सब लोग हैं page number 162 of your government textbook. Okay, page number 162 of your government textbook. The question is, find out the order and degree. Find out the order and degree of the following differential equations. Find out the order and degree of the following differential equations. अभी ये देखो, when I take you back over here, I think erase कर दिया है. If I take you back over here, yeah, यहाँ पे y, ये सब differentials के लिए y is a function of parameter कौन है? Chapter of derivatives, parameter is x. Okay, y is a function of x. तो हर टाइम ऐसा जरूरी नहीं रहेगा कि y is a function of x. Okay, it can also be dx by dt. This is the first order derivative. D square x by dt square, second order derivative. D cube x by dt cube, third order derivative. Okay, so इसमें x is a function of t. Do you agree with me, guys? Okay, so these are also differentials. तो ये भी differentials है. Fine. अभी exercise 8.1. Let's go to exercise 8.1. Question number 1, sub question 1. I'll write down the equation for you. D square x by dt square plus dx by dt the whole square is equal to, sorry, plus 8 is equal to 0. Plus 8 is equal to 0. Okay. Now see, let us understand what are the differentials over here.
डिफरेंशियल्स, पहला डिफरेंशियल है dx by dt. Do you agree with me? First differential is dx by dt. What is the second differential? Any other differential in this problem? Second order derivative, d square x by dt square. This is the second order derivative. So the order of this problem is 2. कोई बता सकता है मैं 2 ये order क्यों लिख रहा हूँ? Because max to max, I'll tell you, because max to max we are having a second order derivative, so the maximum order is 2. Order हमेशा maximum रहता है. चलो समझाइए तुम लोग को. Now let me ask you one thing. अगर प्रॉब्लम में ये नहीं रहता था, अगर ये प्रॉब्लम में नहीं रहता था, तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना रहेगा? 1. It is only first order derivative. Understood? Okay. So maximum order is 2. तो मैक्सिमम ऑर्डर 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है मैक्सिमम ऑर्डर 2. अभी जो मैक्सिमम ऑर्डर 2 है, मैंने उसको हाईलाइट किया, उसका डिग्री क्या है, उसका पावर क्या है? ऑर्डर इज 2. तो ये चीज का पावर क्या है? ये चीज का पावर क्या है? बोलो. पावर, लॉज ऑफ इंडाइसिस, पावर क्या है? द पावर इज 1. इसका डिग्री 2 है लेकिन पावर 1 है. समझा क्या? क्योंकि इसको अगर देखोगे इट इज समथिंग लाइक दिस, पावर 1. क्लियर है क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अरे ये अंदर वाला 2 को मत देखो, ये तो डिग्री का, ये तो ऑर्डर हो गया. ये अंदर का 2 तो ऑर्डर हो गया, डिफरेंशियल है ये. ओके. लेकिन पूरे टर्म का पावर कितना? पूरे टर्म का पावर कितना? 1. सो द डिग्री इज 1. सो द डिग्री इज 1. ओके. ये कॉपी करो, सेकेंड प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम हो जाने दो. you'll understand many things, don't worry. ये अगर नहीं समझे तो don't get panic. I'll explain you better in the next 2 problems. नहीं समझा, इट्स ओके. एक दो एग्जांपल्स और जब भी लूंगा, that time I'll make you understand it in a better way. या कॉपी करके हो जाने के बाद मुझे बोल देना प्लीज. चलो सेकेंड सब क्वेश्चन. आज मेरे पास डाइजेस्ट नहीं है. समवन प्लीज सिट विद द नवनीत डाइजेस्ट और अब देख लो कि क्वेश्चन बराबर से हम लोग कॉपी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में आंसर में बहुत सारे एरर है. डोंट लुक एट द मेथड ऑफ सॉल्विंग, क्वेश्चन और आंसर देख लो. ओके. आई विल कॉपी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज d square y upon dx square the whole square dy by dx the whole square is equal to a raised to x. So the differentials, what are the differentials over here? The first order derivative is there, dy by dx. The second order derivative is there, d square y by dx. So what is the order of the problem? What is the order of the problem? First order derivative, second order derivative. Maximum order लेने का कि minimum order लेने का? Are we supposed to take the maximum order or we supposed to take the minimum order? Maximum order. ये आज तुम लोग का इंटीग्रेशन का टेस्ट है ना, आज या कल? आज है क्या? ओके ओके, मेरे से इंपॉर्टेंस ले लो. या डिग्री, डिग्री. अभी मैक्सिमम ऑर्डर जो है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ.
इसको मैंने हाईलाइट किया, देखो आई एम हाईलाइटिंग दिस। तो ये जो टर्म है, मैक्सिमम ऑर्डर का जो टर्म है, उसका पावर कितना, तो पूरा टर्म का पावर कितना, 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गया 2। अभी समझा क्या तुम लोग को? अभी समझा? ठीक है। अभी यहाँ पे अगर 4 रहता था, ये 2 के जगह पे अगर 4 रहता था, सो व्हाट विल बी द डिग्री? 4। क्लियर है क्या? ठीक है। जो मैक्सिमम ऑर्डर रहता है ना, जो मैक्सिमम ऑर्डर, वो टर्म का पावर देखने का, वो टर्म का पावर देखने का। जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसको देखो और वो टर्म का पावर को देखो। आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ फॉर यू। यस और नो? कॉपी करो। घाटकोपर ब्रांच में आज कितना कितना बजे टेस्ट है? ओके, चलो आगे बढ़ू। शुड आई जस्ट प्रोसीड? थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। डी रेस टू 4 वाई अपॉन डी एक्स रेस टू 4 प्लस, ये इसमें इक्वल टू है ही नहीं, इक्वेशन कैसा बनेगा ये डाइजेस्ट में देखो बीच में प्लस है कि इक्वल टू है यहाँ पे? समवन प्लीज चेक। कुछ तो मिसप्रिंट हो गया टेक्स्ट बुक में। ये चैप्टर का करेक्शंस मैंने टेक्स्ट बुक में किया नहीं था। दोनों में बीच में प्लस है कि मल्टीप्लिक एडिशन है? इक्वल टू है ना? ओके। नाउ हैव आई कॉपीड करेक्टली एज पर द डाइजेस्ट? ओके, नाउ सी differentials. Differentials, which is the first differential? What are the possible differentials? उसमें से first differential कौन सा? dy by dx, perfect. dy by dx is the first differential. Okay, which is the next differential? दूसरा differential कौन सा है? ओके, अभी मुझे एक बात बोलो, इज दिस द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? ये पहला वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या? अच्छा, इसको एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, मालूम है क्या तुम लोग को? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फाइन। एफ डैश एक्स भी बोलने का उसको। और ये दूसरा वाला कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? दिस इज विच ऑर्डर डेरिवेटिव? ओके, so what is the order of the problem? What is the order of the problem? 4. Order is 4. I hope you guys have understood this. ठीक है, परफेक्ट। डिग्री, अभी ऑर्डर जो 4 है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये पूरा टर्म का, ये पूरा टर्म को अगर हम लोग बॉक्स ब्रैकेट में डाल देंगे, इफ वी आर पुटिंग दिस एंटायर टर्म इनटू बॉक्स ब्रैकेट, व्हाट विल बी द पावर ऑफ दैट बॉक्स ब्रैकेट? 1। चलो समझ में आया? अभी अभी थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है?
Are you confident enough? Okay. Now next question, that is question number 4. Prior to that, ये पहले अच्छे से copy कर लो. Come on, please copy this in a good manner. ये जो टर्म है, ऑर्डर 4 वाला जो टर्म है, उसको बॉक्स ब्रैकेट में डालो. इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? अरे बोलो. 1. तो डिग्री 1. ठीक है. Let us go to fourth sub question. Let us go to fourth sub question. Y triple dash square plus 2 y double dash d whole square plus 6 into y dash plus 7y equal to 0. Okay. Differentials. See, y is not a differential. Y dash is a differential. Y double dash is a differential. Y triple dash is a differential. Y dash का मीनिंग रहता है dy by dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. Y डबल डैश का मीनिंग d स्क्वायर y by dx. Y ट्रिपल डैश का मतलब d क्यूब y by dx. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आएगा? ऑर्डर बताओ. एवरीवन प्लीज लेट मी नो द ऑर्डर. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस प्रॉब्लम? 3. चलो, किसी को कुछ पूछना है ऑर्डर 3 कैसे? डिग्री. ऑर्डर 3 कहाँ पे है? ऑर्डर 3 यहाँ पे. डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? 2. सो द डिग्री इज 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. कॉपी, ये पहले कॉपी करो जो लोग कर रहे हैं. कॉपी करो ये. क्वेश्चन नंबर 6. dy by dx is equal to 7 d square y by dx square. What are the differentials?
What are the differentials? dy by dx, d square y upon dx square, d square y upon dx square. Okay. What is the order? Two. Second order derivative is the maximum order. ये टर्म को बॉक्स ब्रैकेट मार दो. बॉक्स ब्रैकेट का पावर कितना? 1. कुछ नहीं है मतलब 1. ठीक है. Guys, are you understanding this? Fine. Should I proceed? Okay. अभी देखो, जो मैक्सिमम ऑर्डर रहता है, अभी फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम में ये मैक्सिमम ऑर्डर है आपको, तो इसका जो पावर है ना, अभी सुनो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम कम्युनिकेटिंग राइट नाउ. इसका जो पावर है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए. या फिर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी नहीं होना चाहिए. इट शुडंट बी ऑल्सो अ फ्रैक्शन. गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज का जो पावर है, इट कांट बी फ्रैक्शन और इट कांट बी अ नेगेटिव नंबर. ठीक है. चलो, तो अभी हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम पे जाएंगे. विल गो टू फिफ्थ प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड दिस. ओके. अभी ये देखो, रूट का मतलब है रेस टू हाफ. रूट का मतलब है रेस टू हाफ. तो यू अग्री विथ मी? तो रेस टू हाफ मतलब क्या फ्रैक्शन आया कि नहीं? रेस टू हाफ का मतलब है फ्रैक्शन आया. और रेस टू 3/2, 3/2 भी फ्रैक्शन है. 3/2 भी फ्रैक्शन. सो फर्स्ट विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस. फर्स्ट विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस. ओके. देखो, दोनों के नीचे, दोनों के नीचे, पावर के नीचे, वी हैव दिस नंबर 2. सो वी वांट टू एलिमिनेट दिस नंबर 2. सबसे पहला ये 2 को एलिमिनेट करना है, राइट? सो मल्टीप्लाइंग, और सॉरी, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और टेकिंग सेकेंड पावर. स्क्वायरिंग को बोलते हैं टेकिंग सेकेंड पावर ऑन बोथ साइड्स. ये समझा गया तुम लोग को? स्क्वायरिंग को हम लोग टेकिंग सेकेंड पावर ऑन बोथ द साइड्स बोलते हैं. तुम लोग को स्क्वायरिंग लिखने का है तो स्क्वायरिंग लिखो. आई विल राइट टेकिंग सेकेंड पावर ऑन बोथ द साइड्स. सेकेंड पावर क्यों, थर्ड पावर क्यों नहीं? व्हाई नॉट क्यूबिंग, व्हाई ओनली स्क्वायरिंग? Because we have to eliminate 2. Correct. Because we have to eliminate 2 denominator only. So 1 plus 1 upon dy by dx, the whole square, 3/2 into 2 स्क्वायर किया मैंने. सॉरी, ये तो 1/2 है, I'm really sorry. dy by dx 3/2 into 2. Have I squared on both the sides? दोनों साइड का स्क्वायर लिया मैंने.
स्क्वायर का मतलब है टेकिंग सेकेंड पावर ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग सेकेंड पावर ऑन बोथ द साइड्स। फाइन, 2 will get cancelled, 2 will get cancelled। कॉपी करो, चलो इतना कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई एम वेटिंग। So 1 plus 1 upon dy by dx the whole square equal to dy by dx the whole raised to 3। समझा? ये 1 का तो कोई मतलब नहीं। So 1 plus 1 upon dy by dx the whole square is equal to dy by dx the whole raised to 3। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। Okay, so look at this, cross multiply dy by dx the whole square plus 1 upon dy by dx the whole square is equal to dy by dx the whole cube। guys, you are able to understand? मैंने LCM लिया है, ये मैंने फ्रैक्शन तो निकाल दिया, लेकिन ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे, इतना इजी नहीं है ये। ये स्टेप क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो dy बाई डी एक्स दी होल क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स दी होल, एनीवन पावर क्या रहेगा इसका? सेकेंड वाले का पावर कितना रहेगा? 2। ये यहाँ पे जाएगा ना, तो 2 बनेगा। चलो, कैन आई मर्ज दिस टू टर्म्स? कैन आई मर्ज दिस टू टर्म्स? yes, we can merge these two terms। okay, indices, correct। तो
पावर दोनों का मर्ज करके क्या होगा? व्हाट विल बी द पावर? 5. So dy by dx the whole square plus 1 is equal to dy by dx raised to 5. Now is anything left for simplification? और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नो. अगर ये तुम लोग ने राइट हैंड साइड में डाला, माइनस किया, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे किया dy by dx raised to 5 minus dy by dx raised to 2, कैन वी डू एनीथिंग विद दिस? इसके साथ कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? ओके. तो आई डोंट थिंक सो वी कैन डू एनीथिंग फर्दर. चलो, differentials. We'll write down the differentials. We'll write down the differentials. There is only one differential, that is dy by dx. Do you agree with me, guys? There is only one differential, that is dy by dx. Okay. So order. Will you tell me the order of the differentials? 1. Degree. Now see, dy by dx यहाँ पर भी है, and we are having dy by dx here as well. So what degree should I consider? 2 consider करूँ कि 5 consider करूँ? I'll consider the maximum degree. I'll consider the maximum degree, that is 5. Order is 1, degree is 5. Verify the answer from the digest textbook में से answer करो, verify करो. चलो, have they given the same answers? Okay. तो 2 और 5 में maximum degree हम लोग 2 5 consider करेंगे, right? Okay. Have you guys understood this problem? I'm going very slow. I don't have any rush to complete this chapter. And neither should you have. आप लोग को भी कोई इसमें you should not run behind कि जल्दी जल्दी खत्म करना है. Understanding should be clear. Should I go to the next problem? Okay. So next problem is sub question 7. Okay. Once again, I repeat, it is exercise 8.1, page number 162 of your government textbook. Question number 1, sub question 7. D cube y upon dx cube raised to 1 upon 6 is equal to 9. Fraction दिख रहा है क्या power में? Are you able to see a fraction? Yes, we are able to see a fraction. Fraction को eliminate करना है. Fraction को eliminate करना है. Now what is there in the denominator of the fraction? What is there in the denominator of the fraction? 6. So taking which power on both the sides? कौन सा power दोनों side पे लेंगे? Which power are we supposed to take on both the sides? We are supposed to take a 6th power on both the sides. Taking 6th power on both sides. फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने का रहता है 6th पावर ऑन बोथ द साइड. चलो, टेल मी, इज इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
चलो ठीक है, 9 रेज टू 6 मत कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करके करना क्या हो, तो कांस्टेंट है ना 9 रेज टू 6, डोंट कैलकुलेट, विल बी वेस्टिंग अवर टाइम इन दैट. ओके. Yes, I'm waiting for you. Are you able to understand this? Yes, no, कुछ तो बोलो. Hi, Kashish, how are you? Are you able to understand? Okay. So let us just proceed. The differentials. Let us understand the differentials over here. Differentials. You tell me what are the differentials over here. एक ही differential है. There is only one differential. D cube y by dx cube. D cube y upon dx cube. So order, third order differential, maximum order is 3, and degree. ये जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो प्रॉब्लम में देखो कहाँ पर है. सिंप्लीफाई करने के बाद लेट्स टेक अ लुक एट इट. यहाँ पर है. इसका पावर कितना है? 1. ठीक है, कॉपी करो. संस्कार, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा. यू हैव टू वेट फॉर दैट, फॉर द आंसर. सेंसिबल क्वेश्चंस के लिए हमेशा मेरे पास आंसर रहता है. यू नो दिस राइट एवरीवन. नेगेटिव पावर नहीं, नेगेटिव पावर नहीं होता. I'll take two extra examples. I'll take two extra examples. Yes, Nikhil, I'll take two extra examples so that your concept is getting clear. Okay. देखो, थोड़ा सा हम लोग इसके साथ मस्ती करते हैं एक्स्ट्रा.
ओके, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, अभी दोनों को फ्रैक्शंस है, वी आर हैविंग फ्रैक्शंस ओवर हियर, राइट। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, तो दोनों साइड पे क्या करने का, क्यूबिंग करने का कि स्क्वायरिंग करने का? ओके, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3? एलसीएम पता रहना चाहिए, नहीं तो वापस स्कूल में भेजूंगा मैं। एलसीएम दोनों का 6 है, सो टेकिंग 6th पावर on both sides, taking 6th power on both sides. Okay, so dy by dx, यहाँ पे है हाफ, यहाँ पे है 6, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 6, डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 3, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू 2, रेज टू 2. Guys, you understood this now? Now what are the differential? What are the differentials? There are two differentials, dy by dx we have first order, and we are having the second differential as well, that is d square y by dx square, that is d square y by dx square. Order or degree? What is the maximum order? Second order derivative. This is the second order derivative. और ये टर्म का पावर कितना है? ये टर्म का पावर कितना है? 2, so the degree is 2. चलो संस्कार, आपका डाउट क्लियर है क्या? लेकिन आपको क्या आना चाहिए इसके लिए? LCM. LCM का फुल फॉर्म क्या रहता है? That you should know. In the concept also you should know. डिग्री 3 कैसा? डिग्री कैन नॉट बी 3 ना। ये प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम का मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? 2 है यहाँ पे, तो ये टर्म का पावर कितना? 2 है ना, तो डिग्री 3 कैसे होगा? यस, आपको समझा? वन वाज सेइंग डिग्री 3. इज इट क्लियर फॉर यू? अरे बेटा, मैक्सिमम डिग्री, आप इसको क्यों देख रहे हो? व्हाई आर यू लुकिंग एट दिस? dy by dx को क्यों देख रहे हो? मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा है, dy by dx है कि d square y by dx square? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो डोंट लुक एट दिस, इसको मत देखो फिर अभी. ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका डिग्री कितना? 2. ठीक है, अब ये देखो दिया जी, मैं आपका भी डाउट सॉल्व करता हूँ. अगर ऐसा सिचुएशन है, इफ वी आर हैविंग दिस सिचुएशन, वन सेकंड, अभी दोनों टर्म्स d square y by dx square, this this is the maximum order. तो मैं दोनों को देख रहा हूँ फिर. आई एम टेकिंग अ लुक एट बोथ. शुड आई टेक अ लुक एट बोथ फर्स्ट ऑफ ऑल? ऑर्डर क्या है प्रॉब्लम में? 2 है, तो मुझे दोनों को देखना ही पड़ेगा. तो इसमें डिग्री 4 लूंगा कि 2 लूंगा? शुड आई टेक 4 और शुड आई टेक 2?
अभी 4 लेना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी देखो नेगेटिव पावर को कैसा टैकल करने का थोड़ा टेक्निक्स बता देता हूँ। आई जस्ट टेल यू व्हाट आर द टेक्निक्स। dy by dx, okay, example extra. So 1 upon dy by dx raised to 3 is equal to 3. Have I eliminated the negative power? Have I eliminated the negative power? Have I eliminated the negative power? किस चीज का यूज करके? What have I used to eliminate the negative power? क्या यूज किया मैंने? Laws of indices. Laws of indices. यशिता जी 1 upon dy by dx the whole cube. Laws of indices. Yes, लीशा, तेजस्वी, आयुषी, समझ में आ रहा है कि नहीं? जेबी नगर ब्रांच, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इज इक्वल टू 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स दी होल क्यूब। अभी ज्यादा और सिंप्लीफाई क्या करेंगे इसको? इसमें से ये आया, इसमें से ये आया। ऑर्डर क्या है बोलो चलो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिग्री कितना है? 3। द डिग्री इज 3। क्या? ठीक है। ओ सो निखिल, आर यू, इज योर डाउट क्लियर? फाइन। और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेता हूं मैं। कौन सा सम देखना है? ये सम। ओके, हियर ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 2, डिग्री इज 3, सॉरी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिग्री इज 3। ये जल्दी कॉपी कर रहे हैं, जल्दी कॉपी करो। ठीक है, गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 171। miscellaneous exercise page number 171, choose the correct alternative. First problem sub question 1. First problem sub question, I'll write it down for you. dy by dx the whole cube minus d cube y upon dx cube plus y e raised to x इक्वल टू क्या दिया? डाइजेस्ट में क्या दिया? इक्वल टू 0 दिया है क्या? यहाँ पे तो इक्वल टू है ही नहीं। जल्दी बोलो। जीरो। ओके, so differentials, what are the differentials? What are the differentials? dy by dx is the first differential, d cube y by dx cube
is the second differential. Is the second differential. Okay. So first order derivative and third order derivative. So what is the order of the problem? Order is 3. तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है. ये पूरे टर्म का पावर कितना है? 1 डिग्री 1. So which is the right option? Option number A. Okay. ठीक है. Second question. पहले कॉपी करो. Those who are copying, take your time. We'll go to the next question after this. Done. Should I proceed with the next problem? Question number 2. Second sub question of choose the correct alternative. Power में fraction दिख रही है क्या तुम लोग को? Are you able to see the fraction in the power? Yes. तो सबसे पहला उसको एलिमिनेट कर लेगा. ओके. सबसे पहला ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है क्या? 3 इंटू 2/3 ऐसे नहीं हो सकता. क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस है. ओके. नहीं तो होता था, हम लोग कैंसिल करते थे. प्लस माइनस रहेगा तो ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. सो द फ्रैक्शन इज ओवर हियर. यहाँ पे फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है? 3. 3 को कैसा एलिमिनेट करने का? टेकिंग थर्ड पावर ऑन बोथ साइड्स या फिर क्यूबिंग बोथ द साइड्स. टेकिंग थर्ड पावर on both sides. So 1 plus dy by dx, the whole cube, 2/3 into 3 equal to 8 d cube by dx cube raised to 3. This is getting cancelled. So 1 plus dy by dx the whole square, the whole cube, the whole square, 8 d cube by dx cube, the whole cube. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. वी कैन एक्सपांड ऐसे a plus b the whole a plus b the whole square. We can do that, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है अपना. I'll tell you why. पहले इतना कॉपी करो. First copy this.
Okay, now see, what is the maximum order? What are the differentials? First, you tell me that. What are the differentials? dy by dx and d cube y by dx cube. First order, third order. Okay, so I'll write down the differentials. dy by dx. Okay, so order is 3. Maximum order is 3. Okay, अभी maximum order का power कितना है? Maximum order वाले term का power कितना है? What is the power of maximum order? This 3. Okay, so degree is 3. Degree is 3. Now you tell me, यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपांड करते थे लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, उससे कुछ फर्क पड़ता था क्या? Would it matter? Absolutely not. Absolutely not. ठीक है, देखो डन. डन. Yes or no? Okay, fill in the blanks. Let us go to fill in the blanks. First one, fill in the blanks. First one, it's on page number 172, question number 2, sub question 1. The order of the highest derivative, the order of the highest derivative occurring in the differential equation is called as, क्या दिया उन लोगों ने आंसर? What they have given as the answer? Textbook people, what they have given? Digest ने क्या दिया? बोलो जरा. Actually, ये I'm not very much convinced with the type of English they have used over here. The order of the highest derivative. They should have given the highest order derivative occurring. Order of the highest derivative नहीं. The highest order derivative. The highest order derivative occurring in the differential equation is called as order. The highest order derivative. The highest order derivative. देखो ना, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये है ना, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अभी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री रहता है, इसका पावर रहता है, जो हम लोग डिग्री लिखते हैं. I don't know whether you people are understanding or not, but then the framing should be the highest order derivative occurring. The highest order derivative occurring in the differential equation is called as order of the differential equation. I have given my comment. Okay. सेकंड वाला बराबर है एकदम. द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. मैंने बोला ना, देखो ना,
पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही रहना चाहिए था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है कि नहीं? सेकंड वन, चलो, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when all the derivatives are made free from negative or fractional indices is called as degree. Made free from negative and fractional indices का मतलब क्या है? नेगेटिव इंडेक्स नहीं चलेगा, नेगेटिव इंडेक्स नहीं चलेगा, उसको फ्री करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल इंडाइसेस नहीं चलेंगे, फ्रैक्शनल इंडाइसेस, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल इंडाइसेस नहीं चलेंगे, तो उसको भी निकालना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एंड once we do that we get the degree of the differential equation। चलेगा? फोर्थ, बोलो, चलो तुम लोग बोलो फोर्थ का आंसर क्या, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर फॉर द फोर्थ वन? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, सेम पेज, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, लेट अस गो टू द सेकंड वन। ये तो पॉजिटिव है, ट्रू और फॉल्स का सेकंड, ट्रू है कि फॉल्स है? डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, ट्रू। थर्ड, the degree of the differential equation is the power of the highest order derivative when the derivatives are made free from negative or fractional indices, if any. Degree of the differential equation is the power of the highest order derivative when the derivatives are made free from negative as well as fractional indices. So it is true, now very true. Okay. Fourth one, the order of the highest ordered derivative. नहीं, एक सेकंड, the order of the highest derivative occurring, the order of the highest derivative occurring in the differential equation is called as a degree। उसको डिग्री नहीं बोलते, ऑर्डर बोलते हैं। the order of the highest derivative, it should be the highest order derivative। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, डिग्री नहीं बोलते। द पावर of the highest order derivative when all the power of the highest order derivative when all the derivatives are made free from negative or fractional indices, if any, is called as the order। डिग्री बोलते हैं ना उसको, इसको डिग्री बोलते हैं। ये एफ आई बी क्या है रे निखिल, व्हाट इज एफ आई बी? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, एफ आई बी, अरे बाप रे तुम लोग यार एकदम यो लोग हैं यार तुम लोग, नया नया वर्ड्स यूज करते हो बूढ़े आदमी के सामने। ठीक है यार, यू आर ट्रोलिंग मी विद सम कोड वर्ड्स अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली मॉर्निंग बट इन मॉर्निंग। ये ऐसा नया नया चीज यूज मत करो बाबू, मैं तुम लोग के जनरेशन का नहीं हूँ, ओल्ड स्कूल। या लेट अस गो टू द फोर्थ प्रॉब्लम, दिखाई दे रहा है वो पेज के ऊपर फोर्थ प्रॉब्लम? या क्वेश्चन नंबर वन, सब क्वेश्चन वन, फोर्थ प्रॉब्लम। डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स
3/2 d square y dx square. Okay, do we have a fractional index? Do we have a fractional index? Yes, we have a fractional index यहाँ पे. Okay, so taking fractional index में हमेशा किसको देखने का, डिनोमिनेटर को देखने का. Taking second power on both sides, as in we are squaring both the sides. Have I written it correctly, guys? बराबर लिखा है क्या मैंने आपके हिसाब से? ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. I'll go to the next page now after this. Please copy it here. Should I proceed? So d cube y upon dx cube plus x. The whole square. The whole cube, na, sorry. D square y dx square the whole square. Okay. Now there is no point in expand in this. इसको expand मत करो. Simplify कर सकते हो आगे, लेकिन वो करके अपना मेहनत कुछ अपने को आउटपुट देने वाला नहीं है. Rather we'll use common sense. Okay. Differentials. What are the differentials? D square y upon dx square, d cube y upon dx cube, d cube y upon dx cube. बराबर. So what is the order? Order is 3. Okay. तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे. डीएन नगर से दिया आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके. अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिख दिया. डिग्री, इफ वी एक्सपांड इट, अगर हम लोग ने एक्सपांड किया रहता तो इसका पावर कितना रहता था, मैक्सिमम पावर. इसको अगर एक्सपांड करते हम लोग a प्लस बी दी होल क्यूब, तो a क्यूब ना, तो इसका पावर तो 3 बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है. ये समझा क्या ये प्रॉब्लम तुम लोग को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है कि नहीं? या कॉपी करो जिसको करना है. ओके. देन सेकेंड सब क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग का फर्स्ट का सेकेंड सब क्वेश्चन.
x plus dy by dx is equal to 1 plus dy by dx the whole square. 1 plus dy by dx the whole square. डिफरेंशियल इसको अभी सिंप्लीफाई क्या करेंगे, तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है. There is only one differential, that is dy by dx. So what is the order? Order is one. First order derivative. Dy by dx is the first order derivative. So order is one. Okay. Degree. Now see, at two places we are having dy by dx. We are having dy by dx at two places. We are having dy by dx at two places. तो बोलो पावर डिग्री क्या है, बोलो चलो. We'll take the highest degree. इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है. So we'll go ahead with the 2. Have you understood this? Okay. Order 1 degree 2. Fine. Extra problem. One extra problem. Okay. This is the extra problem. Order and degree. सबसे पहला मुझे एक बात बताओ, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्या? दिस इज नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म. इसको और हम लोग अच्छी तरीके से और इसको रिफाइन कर सकते हैं. वी कैन रिफाइन दिस फर्दर. ओके. सो dy by dx the whole cube upon dy by dx इक्वल टू 1. बराबर है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो dy by dx इज व्हाट? पावर क्या रहेगा इसमें? सो ऑर्डर इज 1. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओनली वन डिफरेंशियल, और उसका डिग्री है 2. उसका डिग्री है 2. So if you don't refine this, if you don't simplify this, you'll get the wrong answer. ऑर्डर राइट रहेगा लेकिन डिग्री में तुम लोग का मारा मारी हो जाएगा. ओके. कैसे पता चलेगा, मतलब अभी ये थोड़ा सा ये वाला चीज आपको क्लिक होना चाहिए, ऐसे मैं बोल सकता हूँ. क्योंकि देखो दोनों का ये सेम है, dy by dx dy by dx. सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस ना, हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है, देखो dy by dx the whole cube is equal to dy by dx the whole square minus 1. इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर करके भी क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. वी कैन राइट दिस. इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या? कैन वी डू एनीथिंग फर्दर? नो. तो इसमें यही चीज है. दैट वाज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, सिंप्लीफाई और हो रहा था. राइट. यस. इज इट ओके नाउ? ठीक है. नाउ सी, लेट अस गो टू एक्सरसाइज 8.1, पेज नंबर 162. गो बैक टू पेज नंबर 162. Go back to page number 162. Yes, Vedangi.
Are we reading the problem? xy. See, verify whether the given function is the solution of the corresponding differential equation. Solution है कि नहीं वो हम लोग find out करेंगे. Okay. So the first one, xy equal to log x plus k. ओके मैंने सोल्यूशन को पहले लिख दिया. अच्छा log y है क्या? सॉरी दिस इज log y प्लस के. मैंने सोल्यूशन को लिख दिया. ओके अभी राइट हैंड साइड में देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है. सो वी हैव y, वी हैव y डैश, वी हैव y, वी हैव y डैश. y तो y ही रहता है फंक्शन ऑफ x, लेकिन y डैश क्या रहता है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज y डैश? dy by dx. ओके तो मुझे इसमें dy by dx लाना है. मुझे इसमें dy by dx लाना है. आई विल हैव टू ब्रिंग dy by dx इन दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं डिफरेंशियल इक्वेशन डीई को देख के बोल रहा हूँ. डीई के अंदर y भी है y डैश भी है. y तो इसमें ऑलरेडी है, वी ऑलरेडी हैव y. मुझे क्या लाना है? dy by dx, दैट इज y डैश. We are supposed to get dy by dx. So differentiating with respect to x on both the sides. Differentiating with respect to x on both the sides. Okay. Equal to. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, just wait for a while. Things will be pretty clear. Don't worry. Okay. So dy by dx of xy. एक दो प्रॉब्लम जाने दो, फिर और कुछ और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. dy by dx of xy is equal to dy by dx of log y plus k. Product rule. Y dy by dx of x plus x dy by dx of y. Okay. यहाँ पे u प्लस और v रूल. dy by dx of log y, dy by dx of k. So y into 1 plus x dy by dx. Okay. k का डेरिवेटिव क्या है? 0. k का डेरिवेटिव is 0. Okay. log y. डेरिवेटिव ऑफ log y. Anyone? अभी डेरिवेटिव्स का टेस्ट भी हो गया वापस एक बार. Is it only 1 upon y? It is 1 upon y dy by dx of y. Chain rule. Someone said yes. I don't know how you are saying yes. Chain rule कौन अप्लाई करे? ओके हो गया. ठीक है. नाउ कॉपी करो. चलो प्लीज कॉपी. Okay, so y plus x dy by dx. Y plus x dy by dx equal to 1 upon y dy by dx.
Can I write dy by dx as y dash? Can I write dy by dx as y dash? डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो ना, y dash का मतलब क्या है, dy by dx. ओके, ये समझ में आ रहा है कि नहीं है तुम लोग को? ठीक है, तो देखो y प्लस एक्स वाई डैश अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश. ओके, कॉपी करो. तो क्या क्या लास्ट स्लाइड जल्दी करो कॉपी. आई शिफ्ट दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ये वाला टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, माइनस हो जाएगा वो टर्म. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश. व्हाट इज कॉमन राइट हैंड साइड में? वाई डैश इज कॉमन, वन माइनस एक्स वाई. तो y dash 1 minus xy is equal to y square. Is this the required differential equation? Is this the required differential equation? Okay, ठीक है. First problem. Those who have not understood this, please wait. Second problem आपको समझ में आ जाएगा after the second problem. ये देखो लास्ट स्लाइड. एक फीडबैक दो, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या तुम लोग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीवन प्लीज गिव मी अ फीडबैक. ओके, नॉट दिस प्रॉब्लम, लेकिन आज का पूरा लेक्चर, ये प्रॉब्लम थोड़ा सीखने के लिए और टाइम जाएगा. पूरा लेक्चर ओके. Next question. Are we ready for the next question, everyone? Anyone still copying?
ठीक है, तो second sub question, let's proceed with the second sub question. We'll start from y is equal to x raised to n, और इसको सॉल्व करते करते मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है. डू यू अग्री विथ मी? अभी जिसको नहीं समझा आंसर देते जाओ. We'll have to start from the solution and we'll go back to the differential equation. Go to the proceed towards the differential equation. Okay. अभी मुझे एक बात बोलो. Take a good look at the differential equation. DE is the differential equation. Take a good look. उसके अंदर कितना डिफरेंशियल्स है? उसके अंदर कितना डिफरेंशियल्स है? दो डिफरेंशियल्स है, दो. तो मुझे ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको कितना बार डेरिवेट करना पड़ेगा? दो बार, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर इज टू. मैक्सिमम ऑर्डर इज टू, तो दो बार करना पड़ेगा. ठीक है, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइम. dy dx of y, dy dx of x raised to n. So dy by dx is equal to n into x raised to n minus 1. ये तो पता है ना सब लोग को. ओके. अभी मुझे एक बात बोलो. डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन उसके अंदर dy by dx है. उसके अंदर dy by dx है. यस. ठीक है. अभी मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए. वी आर सपोज टू ऑल्सो फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इज इट ओके? तो वापस डेरिवेट, once again I'll derivate this. dy dx of dy by dx is equal to dy dx of n into x raised to n minus 1. So d square y by dx square, n is a constant, it will go outside. x raised to n का डेरिवेटिव, x raised to n minus 1 का डेरिवेटिव, सॉरी, n minus 1 x raised to n minus 2. समझा क्या? क्लियर है? Tell me, is this clear for you? ये तो डेरिवेटिव लिया मैंने, n बाहर, n इज गोइंग आउटसाइड, कांस्टेंट है. यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला, n x रेज टू n माइनस 1, -1 -1 -2 बन जाएगा. अभी क्लियर है क्या? ओके. क्या अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है क्या? लास्ट प्रॉब्लम में कैसे एकदम अच्छे से आ गया था. वी हैड गॉट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी क्लियरली. सॉल्व करते गए, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है कि नहीं? वी वेंट ऑन सॉल्विंग, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. लेकिन ये केस में ऐसे हो रहा है क्या? वो जो राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो आ रहा है क्या? बोलो भाई. नो. सो वी विल चेंज अवर अप्रोच. विल चेंज अवर अप्रोच. तो थोड़ा सा एक ट्विस्ट मारते हैं प्रॉब्लम में. ओके. विल अप्लाई एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. एलएचएस इक्वल टू आरएचएस टेक्निक यूज करेंगे. ओके. सो नाउ पे अटेंशन. आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. सो LHS of the differential equation, x square d square y by dx square minus n
x dy by dx प्लस एन वाई इक्वल टू 0। ये कितना टाइम लास्ट स्लाइड अभी, क्या यार, जल्दी कॉपी करो, लिंक टूटा है फिर। ये हम लोग सॉल्व करते गए, वी आर नॉट गेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो चाहिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला गया, सब लोग जल्दी बोलो चलो। हम लोग ये सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करके भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा नहीं। सो आई एम चेंजिंग द अप्रोच, आई एम गोइंग एज पर LHS RHS। ओके, नाउ यू गाइस टेल मी, डू वी हैव d square y by dx square? डू वी हैव दैट? ये अपने पास है? यस, वी हैव दिस टर्म दैट इज इक्वल टू this n into n minus 1 x raised to n minus 2, n minus 1 x raised to n minus 2 minus n x, do we have this term dy by dx है क्या मेरे पास? क्या है वो? n into x raised to n minus 1, okay, and do we have y? y का टर्म है क्या? what is y? x raised to n इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, LHS इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे इक्वल टू डाल दो। तो दिस इक्वल टू, इसको और इसको लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करूं, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 2, लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करूं, एक्स का पावर क्या रहेगा बोलो चलो, ये दोनों को लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करो, विल इट बी 2 प्लस एन माइनस 2, will it be 2 plus n minus 2? Bases are same, powers will get added, so will it be x raised to n? Will it be x raised to n? If you're not understanding, you should ask. किसको नहीं समझा ये x raised to n कैसे हो गया, दोनों दोनों को मिला के? ये देखो, x स्क्वायर है इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 2, बेसेस आर सेम, ओके, पावर्स विल गेट एडेड, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स रेज टू एन। समझा क्या? यस नो? ओके, look at this, can I write this as n square minus n? n square minus n, ओके, अभी ये दोनों को मिला के कितना होता है, टेल में, माइनस साइन आएगा बीच में, ये दोनों को मिला के कितना होता है? इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? 1, और इसका पावर n माइनस 1, तो बोलो ये दोनों को मिला के कितना होता है? इज इट एक्स रेज टू एन? ये भी एक्स रेज टू एन हो गया, 1 प्लस एन माइनस 1, 1 1 कैंसिल, इनटू एन स्क्वायर। समझा ना एन स्क्वायर कैसे आया? n into n will give me n square प्लस n into x raised to n, तो तीनों में क्या कॉमन है? x raised to n कॉमन है, तो विद इन द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू 0,
Is it equal to RHS? Is it equal to RHS? Okay. So that means वो जो solution दिया है, is it the solution of the given differential equation? क्या वो solution है differential equation का? अगर नहीं रहता था तो LHS RHS नहीं होता था. अगर नहीं रहता था ना वो solution, तो LHS RHS equal नहीं रहता था. मैंने दोनों प्रॉब्लम अलग अलग अप्रोच से सॉल्व किए. आई हैव सॉल्व्ड बोथ द प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट अप्रोचेस. बोलो समझा कि नहीं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. ओके. हाँ, उसके पहले कंक्लूजन लिखते हैं. देयरफॉर y इज इक्वल टू x रेज टू n इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. y is equal to x raised to n is the solution of the given differential equation. थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ू? शुड आई? ओके. थर्ड सब क्वेश्चन. I'll start with the solution. Y is equal to e raised to x. Look at the differential equation. उसमें कितना डिफरेंशियल है? उसमें कितना डिफरेंशियल है? एक ही डिफरेंशियल. विच ऑर्डर? व्हाट ऑर्डर इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर. तो डेरिवेटिव कितना बार लेने का? डेरिवेटिव कितना बार लेंगे? एक ही बार लेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर. सो dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ e raised to x. So dy by dx is equal to e raised to x. Do you agree with me? Do you agree with me? Okay. But then without LHS RHS, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ. LHS RHS भूल जाओ. e raised to x क्या है? What is e raised to x? कोई बोल सकता है e raised to x है क्या? What is e raised to x? Y. Okay. Since y is equal to e raised to x given. अरे है कि नहीं y का वैल्यू e raised to x? देखो. तो ये प्रॉब्लम में LHS RHS करने का जरूरत गिरा क्या? नहीं. So this was like the first problem, which is required differential equation. बोलो, समझ में आया तुम लोग को ये प्रॉब्लम? LHS RHS कभी करने का when the problem is difficult. इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं था. क्लियर है क्या तुम लोग को? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? ओके. कॉपी करो, then we will proceed with the next problem. Please copy this. We'll proceed with the next problem.
Should I? Should I? Okay. Fourth sub question. Y is equal to 1 minus log x. Y is equal to 1 minus log x. Look at the differential equation. Differential equation के पास एक बार देखो, एक बार डेरिवेट करने का कि 2 बार डेरिवेट करने का? 2 times. Very good. Why? किस चीज के लिए? Why? Because it is second order derivative. d square y by dx square दिख रहा है ना अपने को? Okay, so we'll derivate this twice. Come on, let us begin with the derivative part. dy dx of y, dy dx of 1 minus log x, dy by dx is equal to 1 का डेरिवेटिव है 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x. समझा क्या? Again derivate this. dy dx of dy by dx is equal to dy dx of minus 1 upon x. So d square y by dx square, take minus 1 common, dy dx of 1 upon x. चलो ये पेज पे किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज आस्क. यू शुड ऑलवेज आस्क. समझ में नहीं आता है तो पूछने का. प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग. Should I proceed? Okay, so 1 upon x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. नेक्स्ट स्लाइड. d square y dx square minus 1 into minus 1 upon x square. So d square y dx square is equal to 1 upon x square. समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकता हूँ क्या कि एलएचएस आरएचएस करना पड़ेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकता हूँ इसमें से, है ना? इसमें कुछ तो थोड़ा सा मस्ती करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? यस, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तुम लोग को समझा क्या कि कभी एलएचएस आरएचएस अप्लाई करने का और कभी सिंप्लीफाई करके निकालने का? when it gets very difficult, सेकंड प्रॉब्लम की तरह, सेकंड सब क्वेश्चन की तरह, इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी.
तो मैंने LHS RHS किया, लेकिन ये थोड़ी ना डिफिकल्ट है। यहाँ पे भी LHS RHS कर सकते हो, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। गाइज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं क्या बोलते ही रहता हूँ, तुम लोग को समझ में आते रहता है क्या? हेलो 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 हेलो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सब क्वेश्चन 5। चलो अटेंडेंस दो, उसके पहले थोड़ा टाइम पास करते हैं। अटेंडेंस दो। DN नगर ब्रांच, प्रेजेंटिज्म, कम ऑन टेल मी। DN नगर, DN नगर। आज फॉर अ चेंज DN नगर का बहुत सारा स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं। आज तुम लोग का मूड आएगा मैथ्स अटेंड करने का? JB नगर, JB नगर, कम ऑन टेल मी, आर यू अटेंडिंग? JB नगर, घाटकोपर, घाटकोपर, मुलुंड, मुलुंड ब्रांच, विक्रोली, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, चालू करता हूं मैं। लेट्स मेक दिस द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, इज इट ओके? ओके, मुझे d2y/dx² चाहिए। मुझे d2y/dx² चाहिए। दो बार डेरिवेट तो करना ही पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy/dx। ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ e रेज टू एक्स है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज। b इज अ कांस्टेंट, b के साथ e रेज टू माइनस एक्स है, सो e रेज टू माइनस एक्स इंटू dy/dx ऑफ एनीवन। कोई बोल सकता है मुझे dy/dx ऑफ व्हाट? जल्दी बोलो, बहुत मेहनत की हम लोग ने सिखाने के लिए। dy/dx ऑफ व्हाट? माइनस एक्स, चेन रूल। ओके, so a e raised to x, b e raised to x minus 1. So dy by dx is equal to a e raised to x minus b e raised to minus x. समझा क्या? ये स्लाइड पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी। Want to ask anything in this slide? Please do ask. छोरे बाबा।
Okay. Do we need to differentiate this one more time with respect to x? d square y by dx square चाहिए ना differential equation में. So do we need to differentiate this one more time? Yes, we'll do that one second. dy dx of dy by dx dy dx of a e raised to x minus b e raised to minus x. So d square y by dx square, a तो कांस्टेंट है, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, b भी कांस्टेंट है, e raised to minus x, d by dx of minus x. डेरिवेटिव अच्छा आना चाहिए इसके लिए. ये चैप्टर में दोनों है, डेरिवेटिव्स भी है, इंटीग्रेशन भी है. ओके, आस्क इफ एनी डाउट इज देयर, प्लीज आस्क. ये स्लाइड के ऊपर किसी को कुछ पूछना है, पूछ लो. थिंग्स आर प्रीटी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, नाउ समवन टेल मी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कैन समवन टेल मी दिस? करेक्ट, इट्स y. ये तो y है. समझा कि नहीं समझा? ओके, सो d square y by dx square is y, is required differential equation. देखो, is the required differential equation. ओके, क्लियर है अभी थोड़ा? आर यू गेटिंग अ नैक ऑफ इट? ठीक है. पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 2 पूछने वाला हूँ. पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 2, आई एम गोइंग टू आस्क दैट.